ہم اس درجے پر ہیں، میں تو اس درجے پر پھنسا ہوا ہوں کہ اللہ آگے بہتر جانتا ہے کہ آپ کا کیا درجہ ہے۔ انسان یہ قدم جیسے ہی اٹھاتا ہے انسان رب کو اپنے اتنا قریب پاتا ہے کہ انسان ورتا ہے، حیرت میں چلا جاتا ہے کہ میرا رب کیا ہے، کیونکہ اس وقت روح کا پہلا لشکارہ انسان کی ذات پر پڑتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایک قدم چل کر میری طرف آ، میں 70 قدم چل کر تیری طرف آؤں گا، تو چل کر میری طرف آ، میں دوڑ کر تیری طرف آؤں گا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ وہ ایک قدم ہے کون سا جو آپ نے چل کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جانا ہے؟ کیا وہ ایک قدم آپ کی نماز ہے؟ کیا آپ نے ایک دفعہ نماز پڑھ دی اور آپ نے ایک قدم اٹھا لیا، آپ نے ایک روزہ رکھ لیا، آپ نے ایک قدم اٹھا لیا، آپ نے کسی یتیم کی خدمت کر دیا، آپ نے ایک قدم اٹھا لیا، یا پھر وہ قدم کوئی اور ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا ہے کہ ایک قدم میری طرف آ، میں 70 قدم تیری طرف آؤں گا۔ ایک سپریم طاقت ہے، بہت ہیوج طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے جس نے چل کر تمہاری طرف آنا ہے، جس کے تم نے قریب جانا ہے۔ تو تمہیں فیل تو ہوگا، تمہیں پتہ تو چلے گا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا رب کعبہ جو ہے وہ تمہارے نزدیک آ رہا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے، اس کے بعد میرے رب قریب آیا، لیکن آپ کو بے خبر ہو، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ ایک قدم کون سا ہے؟ دیکھو اولیاء کہ اگر تم ہزاروں سال پرانی کتابوں کا صحیح ڈیپلی جا کے جائزہ لے لو تو آپ کو ایک چیز کا پتہ چلے گا کہ ان کتابوں کے اندر درجہ بدرجہ انسان نیچے اتارا گیا اور درجہ بدرجہ انسان نے اوپر جانا ہے۔ یعنی ہمیں جب ہماری جو اصل ہے نا، ہمیں اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت احسن ہمیں بنایا، بہت ہی احسن بنایا۔ احسن بنانے کے بعد ہمیں نیچے کی طرف دھکیل دیا گیا، ہمیں نیچے اتارا گیا۔ تو یہ درجہ بدرجہ انسان نیچے کی طرف آیا، یہاں سے آ کے اس نے واپس خدا کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو یہ جو نیچے سے درجے اوپر کی جانب جاتے ہیں نا، یہی حقیقت میں پہلا سٹیپ ہے۔ یعنی اولیاء کہتے ہیں کہ جب تم یعنی اس دنیا میں آ کے تم جس درجے میں پھنسے ہوئے، اس سے ایک درجہ تمہارا رتبہ اوپر گیا تو تم اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ایک قدم بڑھے، اس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی ذات کی قربت کو اپنے بہت قریب پاؤ گے۔ 70 قدم سے مراد کیا ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات نے چل کر تمہاری طرف آنا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی قربت یہ ایک اشارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا چل کر آ میں بھاگ کر آؤں گا، ایک قدم آ میں 70 قدم آؤں گا۔ یعنی اس وقت تم اللہ تعالیٰ کی ذات کی قربت کو بہت زیادہ فیل کرو گے، تمہیں احساس ہوگا کہ واقعی میرے وہ پاس آ گیا ہے، صرف میں نے ایک قدم بڑھایا۔ لیکن وہ ایک قدم کیا ہے؟ اسی قدم کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب میں اس قدم کو ایکسپلین کروں گا نا تو آپ کو آپ کا روحانی درجہ بھی پتا چل جائے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں سارے کے سارے درجات اوپر سے لے کے نیچے تک اور نیچے سے لے کے اوپر تک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں، اور آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ آپ اگر اپنی ذات کے اپنے ضمیر کا آئینہ دیکھو گے، اس کو اینالائز کرو گے، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ اس وقت روحانیت کے کس درجے پہ ہو۔ تو سب سے پہلے دیکھو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے 6 یوم میں سارا نظام بنایا۔ اب ترجمہ کیا ہوا ہے کہ یوم سے مراد ہے دن، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، اولیاء کے نزدیک یہ نہیں ہے۔ ایک دن جو ہمارا یہ دن ہے نا، اس دن کے برابر وہ دن نہیں ہے، بلکہ یوم کا مطلب انہوں نے دور کیا ہوا، ایک زمانہ۔ اولیاء کہتے ہیں یہ ایک عالم ہے، ان 6 عالموں سے، ان 6 دوروں سے، ان 6 ادوار سے گزر کر انسان تخلیق ہوا ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ پہلا اس کا دور کیا ہے؟ پہلا دور ہے ہو کا عالم۔ ہو کا عالم میں اکثر آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، جس وقت صرف اور صرف وہ تنہا احد کی ذات موجود تھی، دوسرا کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، یہ کائنات تھی ہی نہیں۔ ہو کے عالم میں جہاں پر ارادہ کیا گیا وہ ایک پہلا دور تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرا دور آیا، یعنی اس دوسرے دور کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک عالم بنایا جسے عالم یاقوت کہتے ہیں، جسے حقیقت محمدیہ بھی کہتے ہیں، یعنی ایک نور کی صورت، ایک نور کا عالم، عالم یاقوت۔ عالم یاقوت میں اگر کوئی ذات موجود ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر کوئی نہیں، یعنی اللہ اور محمد کے درمیان کوئی بھی نہیں ہے ان 2 عالموں میں۔ اس کے بعد ایک سٹیپ اور جب نیچے آیا، یعنی تیسرا دور یا تیسرا زمانہ، اسے عالم لاہوت کہتے ہیں۔ عالم لاہوت کے اندر پہلی روح کو تخلیق کیا گیا، جو ہماری ذات کے اندر جو سول موجود ہے نا، اس روح کو، یعنی ہماری پہلی جو صورت تھی وہ عالم لاہوت کے اندر، اقبال کہتے ہیں نا کہ طائر لاہوتی، کہ لاہوتی ہے تو وہ لاہوتی جو ہماری صورت تھی اسے روح القدس بولا گیا۔ اس وقت ایک کنڈیشن یہ تھی کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، ہمیں اپنی ذات کا احساس تک نہیں تھا۔ یعنی روح کی وہ جو کنڈیشن ہے نا، اس میں روح کو اپنی ذات کا احساس بھی نہیں تھا، صرف ہر وقت دیدار الہی میں مگن، کوئی پردہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے رسول کے ساتھ ہمارا ناطہ جڑا ہوا تھا۔ لیکن یہ ہماری پہلی سٹیج تھی۔ اس کے بعد روح کو نیچے اتارا گیا دوسرے درجے پر، یعنی ویسے چوتھا درجہ لیکن روح کو دوسرے درجے پہ اتارا گیا، جسے جو کہتے ہیں نا کہ روح سلطان،
एक सूरत दी गई। ऐसा आलम जिसे आलम जबरूत कहते हैं, उस आलम के अंदर रूह को एक ताज पहनाया गया। ये वो आलम है जहां पर जाकर हमें हमारी रूह को एहसास हुआ कि हमारी रूह जो है ना, वो उसके अंदर एक एहसास, मैं हूं का एहसास, यानी अना। दूरी अल्लाह ताला की ज़ात से थोड़े और दूर हुए तो हमारी ज़ात के अंदर एक अना। इसके अलावा अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें यहाँ पर सुल्तानी दी, यानी हमारे खिलाफत का जो ताज है ना इंसानियत के पास, वो इसी आलम में इंसान को पहनाया गया। जिस खिलाफत के ताज के पहनाने की वजह अल्लाह ताला की ज़ात के इस्मा का नॉलेज हमारे कल्ब पे आया, यानी उस वक्त हमारे अंदर जो मौजूद सोल है उसका नाम रूह सुल्तान था। उसकी कैफियत यानी उसको मैं होने का एक अना का एहसास मिल गया। इसके बाद हमें और नीचे उतारा। अल्लाह फरमाता है ना कि मैंने नीचे उतारा है, नीचे की जानिब। जब और नीचे आए तो हम आलम मलकूत में आए। आलम मलकूत के अंदर हमारी जो एक सूरत बनी, यानी आलम मलकूत से ऊपर जो दर्जा है ना रूह सुल्तान पे जाके, वहां पर कोई सूरत नहीं है। वहां पर सूरत कहां पर आकर मिली? आलम मलकूत में। जैसे आपने फरिश्तों के बारे में सुन रखा है ना, कितने बड़े फरिश्ते हैं, 600 पर हैं, बहुत रफ्तार से उठते हैं। तो एक सूरत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों को देखा तो वो फरिश्ते कौन से थे? उनकी एक सूरत है, कैसी सूरत? जो जलावे की मानिद, धुएं की मानिद है, जिसको आप पकड़ने की कोशिश करो तो वो थामने नहीं होती, उसके अंदर से हाथ निकल जाता है, लेकिन वो एक सूरत रखते हैं। वो कौन सी? वो रूह रूहानी है। रूह रूहानी के बाद इस की दूरी अल्लाह ताला की ज़ात से और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन यहां पर भी कोई नफ्स, कोई शर, कोई कीना, सिर्फ हुक्म की पाबंदी और अल्लाह की इबादत, ये हमारी ज़ात के अंदर या हमारी रूह के अंदर मौजूद है। ये भी एक दर्जा है। इस दर्जे के बाद और जब सबसे नीचे आए तो रूह इंसान। रूह इंसान में आके हमारी ये जो रूह है इस वजूद के अंदर कैद हो गई, हड्डियों के ढांचे के अंदर, हड्डियों के पिंजरे के अंदर कैद है। यहाँ पर नफ्स, शावत, शर, हवस, हन्नास, हर चीज, वक्त की कैद लगी इस पर, आजमाइशें लगी इस पर, ये रब से दूरी हुई। यूं हमारी रूह को अल्लाह ताला की ज़ात ने नीचे उतारा, अहसन तकवीम बनाकर अल्लाह ताला की ज़ात ने फिर इसको नीचे की तरफ धकेला, नीचे की जानिब उतारा। ओलिया कहते हैं कि यहीं से इंसान ने दोबारा वापसी अपनी लेनी है और ये दर्जा ब दर्जा इंसान ऊपर जाता है। जो बंदा एक कदम, बात को समझ लो, जो बंदा एक कदम आगे ले लेगा वो बंदा अल्लाह ताला की ज़ात को बहुत अपने करीब पाएगा, क्योंकि उसकी सारा स्टेटस चेंज हो जाएगा, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी, अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत में भेजेगा। लेकिन एक बात को जरा गौर से सुनना, मैंने बोला ना कि आपके दर्जे का पता चल जाएगा अगर आप बगौर अपनी ज़ात का जायजा लोगे। कैसे? अब रूह इंसान, आगे की बातें तो बाद में करेंगे कभी। रूह इंसान हमारी ज़ात के अंदर मौजूद है। वो रात को हमारे जिस्म से निकल जाती है, लेकिन हमें खबर नहीं है, हमें कोई पता नहीं होता वो रात को छोड़कर जाती है, कहाँ पर जाती है, क्या करती है, कुछ खबर नहीं है। हम बेखबर हैं, हमारी ज़ात के अंदर बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है उस चीज़ का कि वो है भी कि नहीं, रात को जा रही है आ रही है, कुछ पता नहीं है। लेकिन उस तक पहुँचने के लिए भी रस्ते हैं। कुरान में जगह जगह पर अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया हुआ है कि नफ्से अम्मारा है जो बुराई सिखाता है। तो पहली इंसान की जो सूरत है अपनी रूह किधर है? रूह यहाँ पर सदर के अंदर। रूह इंसान का मुकाम क्या है? ये सदर। अलम नशरह लका सदरक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक तो अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद खोल दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ रब मेरा सीना तू खोल दे, ठीक है, वो दुआ करें, लेकिन अल्लाह नबी पाक के बारे में फरमा रहा है कि तुम्हारा, आपका सीना मैंने खुद खोल दिया। ये फर्क है मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात को दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेराज कहते हैं ना कि रब को इंतजार नहीं हो रहा था। रब ने बोला मैंने खुद तुम्हारा सीना खोला ताकि जल्दी से जल्दी आपके बोझ को हल्का किया जाए। वो बोझ कौन सा था? वो नफ्स का बोझ था। वो बोझ हल्का हुआ, सरकार का सफर शुरू हुआ, सरकार मेराज पर गई। एक लंबी और बहुत दूर की दास्तान है, इसको आज डिस्कस नहीं करते, बात करनी है मैंने अपनी और आपकी। हमारी रूह किधर है? सदर के अंदर। सदर के अंदर सोल मौजूद है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके ऊपर पड़े हुए हैं पर्दे। कौन से पर्दे पड़े हुए हैं? नफ्स के पर्दे। अब नफ्स के पर्दों के अंदर अभी सोल तक तो पहुंचना, उस दर्जे तक पहुंचना तो दूर है ना, नफ्स के भी दर्जात हैं। सबसे पहला नफ्स कौन सा है? अम्मारा। वो नफ्स जिसके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है कि बेशक नफ्स अम्मारा है जो बुराई सिखाता है। ये बुराई सिखाने वाला नफ्स जो है ना, ये समझ ले कि एक न्योले की शक्ल का है, एक किरले की शक्ल का, एक छिपकली की शक्ल का, एक मेंढक की शक्ल का, एक बंदर की शक्ल है। इसकी असल सूरत इंतहाई बुरी है और यही वो शक्ल है जो शक्ल जहन्नुम में रहने वाले लोगों की होगी। स्याह चेहरा होगा। ये नफ्स अम्मारा है, ये इंसान की पहली सूरत है। इसके बाद इंसान के नफ्स की सूरत देखो। नफ्स अम्मारा क्या करता है? नफ्स अम्मारा अगर आप में है ना, तो आप अपने अंदर एक आदत को पाओगे। क्या आदत आप पाओगे? कि आप माल को जमा करते हो। पूरी जिंदगी इंसान कोशिश करता है कि माल जमा करे, वो जमा किए जा रहा है, जमा किए जा रहा है। कभी भी उसके अंदर ये ख्याल दूसरे नफ्स का, नफ्स लवामा का पैदा नहीं हो जिसमें से कुछ हरज भी
किसी गरीब के काम आ, किसी मस्कीन के काम आ, किसी की सेवा कर, वो ख्याल ही नहीं पैदा हो रहा। मतलब क्या है कि आप पूरी तौर पर नफ्से अम्मारा के कैदी, अपना माल जमा किए जा रहे हो, उस पर तकब्बुर किए जा रहे हो। तो ये आपकी फिर बातनी सूरत इंतहाई खतरनाक है, एक बंदर की तरह की सूरत है नफ्से अम्मारा की। ये जहन्नुम है इंसान के लिए अगर वो नफ्से अम्मारा का कैदी है। लेकिन अगर आप इससे एक दर्जा आगे बढ़ो और आपके अंदर नफ्से लवामा आ जाए, नफ्से लवामा यानी आपके अंदर कभी कभी ये ख्याल पैदा हो कि क्यों ना मैं इस माल में से कुछ अल्लाह की राह में खर्चूं, क्यों ना मैं किसी यतीम के लिए खर्चूं, मेरी जरूरत पूरी हो रही है मैं किसी को दूं। आपके अंदर एक अच्छी सोच, एक अच्छे नफ्स की जानिब से एक सोच आ रही है, तो ये एक दर्जा होगा और यहीं से वापसी का सफर भी शुरू होगा। यानी आपने अपने नफ्से अम्मारा को, जिसने आपको कैप्चर किया हुआ था, उसके ऊपर आपका नफ्से लवामा अभी आ रहा है। यानी नफ्से अम्मारा आपको बुराई सिखा रहा है, तकब्बुर सिखा रहा है, लालच सिखा रहा है, लेकिन आपके अंदर से एक सोच निकल करके आती है कि क्यों ना तू रब की राह में खर्च, और तू अपनी जात को जो है ना वो नीचे ले जाता है और नफ्से अम्मारा को नफ्से लवामा कैद में ले लेता है। तो ये पहला स्टेप है वापसी का, यानी रूह तक पहुंचने का। आपके नफ्से अम्मारा को नफ्से लवामा ने अपनी कैद में ले लिया और आपकी जात के अंदर सहाबत आ गई, आपकी जात के अंदर खुदा खौफी आ गई, आपकी जात के अंदर ये चीज पैदा होगी कि मैंने अल्लाह की राह में खर्चना है। इसके अलावा इसकी बहुत सी मिसालें दी जाती है। लेकिन अगर एक वक्त ऐसा आ जाए कि आपका नफ्से अम्मारा बिल्कुल ही जो है ना वो कैद में आ जाए, वो बिल्कुल मुख्ताज हो जाए नफ्से लवामा का, आपके अंदर एक अच्छा इंसान पैदा हो जाए जो हर वक्त अपनी जात से, बुराई से दूर रहता है, अपने आप को अगर आप बुरा काम करते हो तो अंदर से मलामत, आपको लानत इतनी करता है कि आप दोबारा इस चीज को करना ही छोड़ देते हो, आप उससे पक्की तौबा कर देते हो। अगर पक्की तौबा आपने कर ली, आप हमेशा के लिए सही हो गए, आपकी जात के अंदर हमेशा एक चीज पैदा हो गई, यानी नफ्से अम्मारा आपका कैद में चला गया नफ्से लवामा की, तो एक स्टेप आपका पूरा हो गया। तो यहां पर औलिया फरमाते हैं कि नफ्से लवामा जब इंसान की जात के अंदर पैदा होगा तो उसका पहला दर्जा यानी पहली मूव उसने वापसी की ले ली। वापसी किधर? दूर रूहुल कुदस तक, जो बहुत तवील सफर है। तो पहली स्टेज का जो है ना, क्यों सरकार ने फरमाया था कि नफ्स की जंग सबसे बड़ी जंग है, तो नफ्से अम्मारा से नफ्से लवामा तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत बड़ी जंग, और यही पहला कदम भी है कि जब तुम ये कदम उठाओगे तो तुम रब को करीब पाओगे। कैसे करीब पाओगे? कि जैसे ही तुम्हारी जात के अंदर नफ्से लवामा आया, आपने अपनी जात को बदल दिया, आपके अंदर अच्छाई आ गई, पक्की तौबा आ गई, उस तौबा के बाद अल्लाह फरमाता है कि नफ्से मुलहिमा आपकी जात को घेर लेता है। मुलहिमा और लवामा मिलते जुलते नफ्स है। क्यों? क्योंकि नफ्से लवामा के ऊपर फिर अल्लाह ताला की जात का करम उतरता है, इंसान को रूहानी ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, इंसान को इस्मा का इल्म दिखाई देना शुरू हो जाता है। यानी इंसान इल्हाम इंसान पर जो होते हैं ना, ये इस स्टेज पर जाकर होते हैं। अगर आपका नफ्स इतना अच्छा हो जाएगा तो आपकी जात पर फिर नफ्स से जो अम्मारा से लवामा और लवामा से मुलहिमा वाली कैफियत आ गई। आप रात को जाके सोओगे, आप पर अल्लाह ताला की जात की बरसात होगी, रहमत की बरसात होगी, आप अपनी जात के अंदर ये चीजें फील करोगे। और जैसे ही आपकी जात के अंदर नफ्स से जो लवामा से मुलहिमा तक पहुंचा तो अल्लाह ताला की जात की रजा यानी नफ्स राजिया मर्जिया का दर्जा आ जाएगा। ये वो स्टेज होगी जहां पर आकर आपके नफ्से अम्मारा को फिर बहुत बहुत अल्लाह ताला के साथ सख्ती से आजमाएगा, आजमाइशों का पैरा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की जात फिर तुम एक भट्टी में गिराएगा। यहां पर आकर फकीर को आजमाया जाता है कि अब तुझे मैं देखता हूं तू कितना पक्का है रूह तक पहुंचने के लिए। जब ये वाला दर्जा आता है, देखता हूं मैं तुझे तू कितना पक्का है, तेरे अंदर कितना लावा है, अभी तेरे अंदर कितना गरूर है, कितना तकब्बर है, कितनी अना है। अल्लाह ताला के साथ हो सकता है आपको जितना माल दिया वो सारा आपसे ले ले कि मेरी रजा में राजी रहे, नफ्स राजिया मर्जिया। अल्लाह ताला की जात वो कहते हैं ना कि इंसान को एक मशीन के अंदर डालकर उसको पीस देता है, एक आग के अंदर डालकर उसको पकाता है, औलाद ले लेता है, रिज़्क ले लेता है। अल्लाह ताला की जात इंसान को सख्त आजमाइश देता है, बीमारी देता है। आप अल्लाह के जितने नबी हैं उठा के देख लो, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सफ़र चेक करो, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का, हर किसी का सफ़र चेक करो। आप डीपली जब देखोगे तो सख्त आजमाइशें आई नफ्स राजिया मर्जिया के दौरान। अल्लाह ताला की जात जब ये देखती है कि मेरा बंदा हर हाल में मुतमईन है, वो कह रहा है कि मैं राजी हूँ, तूने औलाद दी है ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने नहीं दी मैं तब भी मैं राजी हूं, तू दे रहा है मैं तब भी राजी हूं, तू रिज़्क दे रहा है मैं तब भी राजी हूं, तूने ले लिया मैं तब भी राजी हूं। मुझे सिर्फ तेरी रजा चाहिए, मकाम में रजा चाहिए मुझे, मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूं कि अल्लाह तू मुझसे राजी है, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये नफ्स राजिया मर्जिया वाली कैफियत आपकी जात के अंदर पैदा होगी। जैसे ही नफ्स राजिया मर्जिया वाली कैफियत आई तो नफ्स मुतमइन्ना ऑटोमेटिकली जगह बना लेगा। नफ्स मुतमइन्ना के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में उठा बोला हुआ है कि ऐ नफ्स मुतमइन्ना मैं तुझसे राजी हो गया। ये नफ्स मुतमइन्ना क्या है कि मैं मुतमिन हो गया।
हमारा नफ्स मुतमिन हो गया कि कुछ है तब भी मुतमिन है हम, कुछ नहीं है तब भी मुतमिन है हम, हर लिहाज से हम सेटिस्फाइड है। जैसे ही हमारा नफ्स मुतमिना तक पहुंचता है तो फकीर कहता है, सुल्तान कहता है कि इंसान रूह इंसान, यानी इंसान का ये सीना चाक होता है। ये सीना चाक होकर इंसान अपनी सोल को अपनी आंखों से देखता है। वहाँ पर इंसान को एक यूनिवर्सल शऊर, इंसान के सेंसरी सिस्टम टोटली चेंज हो जाते हैं। इंसान ये कदम जैसे ही उठाता है, इंसान रब को अपने इतना करीब पाता है कि इंसान वरता हैरत में चला जाता है कि मेरा रब क्या है, क्योंकि उस वक्त रूह का पहला लश्कारा इंसान की ज़ात पर पड़ता है और यहाँ से फिर रूह का सफ़र स्टार्ट होता है जो बहुत ही तवील है। लेकिन मैं बात यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर इंसान हम वो है, मैं अपनी बात करता हूँ, किसी को मैं नहीं बोलता कि हम लोग नफ्से अम्मारा के कहती हैं। अभी हमारा तो नफ्से लवामा भी नहीं हुआ, आगे के सफ़र तो बड़ी तवील है ना, इसको मैं अगर चाहूँ तो मैं बयान करूँ, लेकिन हम इस दर्जे पर हैं, मैं तो इस दर्जे पर फंसा हुआ हूँ कि अल्लाह आगे बेहतर जानता है कि आपका क्या दर्जा है। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह खैर।